Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, the first one being Koneru Humpy wins the Rapids tournament that has been happening in New York. So Koneru Humpy has won the championship, and you would see कि last few years से there has been rise of the champion players from India, and Indians have been dominating in the chess segment once again after after a long period of time after Viswanathan Anand. So many players are winning back to back in the chess championship, be it R Praggnanandhaa last year or be it D Gukesh this year, the world champion, and be it their one in Budapest, wherein in the fight championship both male and female dominated the entire chess scenario, and now with Koneru Humpy's win in the chess tournament, so you would see the dominance of Indian chess players in the entire chess arena. So this is the first news. Second news is regarding Kuchipudi. One photo has emerged in the newspaper regarding the mega Kuchipudi dance that has been taking place. So that is the news. Second news we have to cover, and we would understand about Kuchipudi dance also, very important from art and culture perspective. Third is India shuts down internet 60 times in 2024, the lowest in 8 years. So if you see the frequencies to which the internet shutdown has been taken place in 2024, it was the least time. So the news is very important, and how it can have impact on the entire country, we will also look into that. And last news for the day is PM internship scheme. Okay, ये स्कीम के बारे में भी हम समझेंगे, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. सो ये स्कीम नॉट ओनली फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव बट जनरली भी आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट एक स्कीम रह सकता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. सो मेक श्योर करिएगा कि आप एंड तक बने रहे. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ठीक है, सो ये चारों न्यूज है, एक एक करके कवर करते हैं. पहला है regarding the win of Koneru Humpy. It again brings a very delightful moment for the country, as Miss Humpy in her she is 37. Okay, it is very hard for her because she has to manage a family, she has to manage a young baby, a toddler, and then she has to go to places and win at this age of 37. When people tend to retire, our champions are winning and bringing home trophies. So this is absolutely marvel of and they are also genius in prodigies in their own game. So this is very delightful and of a news to look into that. And ये जो रैपिड चेस टूर्नामेंट हो रहा है, चेस चैंपियनशिप, ये कहाँ हो रहा है? आपके न्यूयॉर्क में हो रहा है. ठीक है, न्यूयॉर्क में ये जो चेस का चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें एरिगैसी जो है, अर्जुन एरिगैसी, इनका जो पोजीशन था वो 5th पोजीशन पे आया है, एंड ही लॉस्ट अगेंस्ट आई थिंक वोलोदार मुर्जिन ऑफ रशिया. ठीक है, तो अगर हम देखें, इंडियाज ग्रेट ईयर इन चेस बिकेम ग्रेटर ऑन संडे एज कोनेरू हम्पी वन वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप इन न्यूयॉर्क. तो वुमेन का जो चेस डिवीजन का जो विन था वो कोनेरू हम्पी को मिला. दिस इज सेकंड वर्ल्ड रैपिड टाइटल फॉर 37 ईयर ओल्ड फ्रॉम विजयवाड़ा. कोनेरू हम्पी का ये सेकंड विन था इन द रैपिड चेस टूर्नामेंट ओनली. तो शी इज द सेकंड, she has won this medal championship for the second time, and this is the second world chess title of the month for India as D Gukesh had lifted the world championship trophy in Singapore just 2 weeks ago. 2 हफ्ते पहले ही D Gukesh ने जो है अपना चैंपियनशिप का ट्रॉफीज लिफ्ट किया था, and now Koneru Humpy won the title. ठीक है, in rapid chess tournament. Back in September, India's men and women teams were the champions at Chess Olympiad in Budapest. तो बुडापेस्ट में जो चेस ओलंपियाड हुआ था, वो चेस ओलंपियाड में भी जो हमारा इंडियन टीम था ऑफ मेन एंड वुमेन दोनों चैंपियंस के रूप में उभर के आए थे. सो you would see the era of chess has begun once again, and this year was a remarkable year in with respect to the game of chess, because बहुत सारे चैंपियंस जो हमारे चेस से हमें देखने को मिले हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये प्लीज याद रखिएगा, रैपिड विमेन का जो चेस चैंपियनशिप है वो कोनेरू हम्पी ने जीता है. ठीक है, See, this is the picture I was talking about. This is the second news regarding the कुचिपुड़ी dance. बहुत सुंदर ये नज़ारे हैं, because you would see the beaches, and beaches के पास में, बीच के पास ही यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी का एक मतलब dancers जो है they have gathered and they are performing कुचिपुड़ी. So we have to understand about कुचिपुड़ी. ये क्या है? One of the Indian classical dance forms है. There are numerous, not numerous but 7 I think classical dance forms, which includes your Bharatnatyam, your Odissi, your Manipuri, and we have Kathak,
कथक, कथकली, वी हैव कुचिपुड़ी, ठीक है। देर आर 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उसमें से कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये कहाँ है, जो पहले जो थे, पहले ओरिजिनली इट वॉज परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ itinerant actors known as Bhagavatalu, who you would travel from village to village performing plays and dances based on Hindu mythology। तो पहले ये जो है ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस, जिनको हम भागवतलु भी कहते थे, वो भागवतलु क्या करते थे, गांव गांव में जाकर दे यूज टू डेमोन्स्ट्रेट प्लेज और हिंदू माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज है उनको वो बताया करते थे, परफॉर्मिंग दिस आर्ट फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी। 15th century द ग्रेट पोएट एंड म्यूजिशियन सिद्धेंद्र योगी प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी जी के अंतर्गत में, पैट्रोनेज में, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो कुचिपुड़ी का जो पूरा डांस फॉर्म है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होने लगा। ही इज क्रेडिटेड विद ट्रांसफॉर्मिंग द डांस फ्रॉम सिंपल फॉक टू सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड क्लासिकल डांस फॉर्म। तो उन्होंने जो गांव-गांव में, बिकॉज गांव-गांव में जाके बता रहे, तो इट इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होगा एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप में डांस फॉर्म था, पर उसी में उन्होंने एडिशन करके यहाँ पर सिद्धेंद्र योगी जी ने उसमें कुछ डांस फॉर्म में एडिशन करके उसको सिंपल फोक डांस से उसको चेंज करके पूरा क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो बना दिया। ये प्लीज़ याद रखिएगा, सिद्धेंद्र योगी जी इज एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी डांस, और वैसे भी कुचिपुड़ी न्यूज में भी है तो इसीलिए और भी पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फीचर्स क्या क्या है इसमें, बहुत इंट्रिकेट जो है फुटवर्क जो है इसमें किया जाता है, ग्रेसफुल मूवमेंट एंड सटल एक्सप्रेशन। जैसे जो हमारा कथकली है उसमें बहुत हाई जो है आपका मतलब बहुत ज्यादा जो है आपके आई वर्क है, या फिर जो एक्सप्रेशन जो है बहुत हैवी एक्सप्रेशन है, पर इसमें बहुत ज़्यादा सटल एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ प्योर डांस, जिसको हम नृत्य कहते हैं, ठीक है, एंड एक्सप्रेसिव डांस, ठीक है, जिसको हम नृत्य कहते हैं, ठीक है, नृत्य एंड नृत्य, ये दोनों एलिमेंट को और साथ ही नाट्य के एलिमेंट को भी मिलाकर ये डांस फॉर्म बना गया है, ठीक है। मतलब आप जो प्योर डांस फॉर्म है, ठीक है, पहले प्योर डांस फॉर्म जो है उसको भी इंक्लूड करते हैं नृत्य में, फिर यहाँ पर क्या एक्सप्रेसिव डांस फॉर्म जिसको हम नृत्य भी कहते हैं, नृत्य एंड स्टोरी टेलिंग के लिए नाट्य का भी यूज किया जाता है। तो तीनों जो है उन तीनों का आपको मिक्स देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन द एज ऑफ अ ब्रास प्लेट नोन एज तरंगम ऑन द बीट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इसमें क्या है, ब्रास प्लेट पे खड़े होकर भी डांस फॉर्म करने का जो है इसमें किया जाता है, जिसको हम तरंगम भी कहते हैं। इट इज लार्जली डेवलप्ड एज हिंदू गॉड कृष्णा ओरिएंटेड वैष्णविज्म ट्रेडिशन एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद भगवता मेला, ठीक है। जो भगवत का जो स्टोरीज है उसको ज्यादातर इसमें दर्शाया जाता है, और इसमें जो वैष्णविज्म है उसका आपको इन्फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कान्हा को लेकर कृष्ण का स्टोरीज को बहुत ज्यादा समझाया जाता है और दिखाया भी जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी परफॉर्मर अपार्ट बीइंग अ डांसर एंड अ एक्टर हैज टू बी स्किल्ड इन संस्कृत एंड तेलुगु लैंग्वेजेस, म्यूजिक एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सिर्फ और सिर्फ उनको डांस आना होगा ये नहीं होता है, बल्कि उनको संस्कृत में भी वेल वर्स होना होगा, उनको तेलुगु लैंग्वेज में भी वेल वर्स होना होगा, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पढ़ना होगा कि कौन सा स्टोरी हम समझा रहे हैं, उस हिसाब से आपको उनको अपने हिसाब से उसको समझना होगा एंड उसको जानना होगा, तभी आप एक पक्के डांसर जो है, पक्के कुचिपुड़ी के डांसर जो है वो बन पाएंगे। बिना ये सब के आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस as well light makeup and ornaments like rakudi that is head ornament, chandravanki that is arm band, ठीक है, अर्धभाषा एंड कसीना सारा, दीज आर नेकलेसेस, ठीक है, नेकलेस है। अ लॉन्ग प्लेट इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड ज्वेलरीज, द ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ लाइट वुड कॉल्ड बोरुगु, ठीक है। तो ये वुड से जो है ऑर्नामेंट्स को बनाया जाता है, जिसको हम बोरुगु भी कहते हैं, ठीक है। द टिपिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन कुचिपुड़ी आर मृदंगम, किम्बल्स, वीणा, फ्लूट एंड तंबूरा। तो ये सब आपको कार्नाटिक म्यूजिक में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत पास पास के रीजन ही है, तो वहां से क्या होगा कि म्यूजिक जो है, बिकॉज कार्नाटिक म्यूजिक इज हैज एन इन्फ्लुएंस इन द एंटायर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो कर्नाटिक म्यूजिक भी यहाँ पर ही यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ कुचिपुड़ी में भी अगर आप देखें मृदंगम का यूज है, किम्बल्स का यूज है, ठीक है, एंड वीणा, फ्लूट एंड तंबूरा का यूज किया जाता है। तो काइंड ऑफ आपको कर्नाटिक म्यूजिक का जो है एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, वो कुचिपुड़ी वाला टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको भरतनाट्यम के बारे में समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अदर क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस लाइक ओडिशी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कथकली, कथक, मणिपुरी, सत्रिया डांस ऑफ असम, वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि कितना इसमें स्ट्रेस करूँ। सत्रिया डांस फॉर्म जो है हमारे असम का, उसको भी आपको आना होगा। क्लासिकल डांस फॉर्म है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो ये आपको पढ़ना होगा खुद से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द शटडाउन ऑफ इंटरनेट, जो कि इस साल सिर्फ 60 टाइम्स ही हुआ है, बहुत कम है। पिछले 8 सालों में ये लोएस्ट है कि हमें मात्र 60 टाइम्स ही शटडाउन करना पड़ा है, ठीक है। तो जो इंडिया ने अभी तक मोबाइल इंटरनेट शटडाउन जो देखा है 2024 में, इट इज़ द 8 ईयर लो कि जब हमें सिर्फ 60 टाइम्स ही इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है, राउंडिंग आउट अ पीरियड वेयर कंट्री बिकेम मोस्ट फ्रीक्वेंट डिप्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द मेजर अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर मेंटेन्ड बाय सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। यहाँ पर क्या है कि हमारा देश अभी भी फिर भी सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करने वाली कंट्रीज में ही आया जाता है, ऐसा इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर बोलता है। और बट यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है। बहुत हम पहले और ज़्यादा हम इंटरनेट को शटडाउन किया करते थे, लेकिन अभी बहुत कम हम इंटरनेट को शटडाउन करते हैं। द रिडक्शन, देयर हैव बीन 60 शटडाउन सो फार दिस ईयर विथ 96 लास्ट ईयर। पिछले साल अगर आप देखेंगे इट वॉज 96 शटडाउन, पिछले साल 96 शटडाउन थे, और अब जो है काफ़ी कम है। कुछ जो है एक्सेप्शंस है, लाइक इन मणिपुर, इन जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा शटडाउन किया जा रहा है। लेकिन बाकी जो है बाकी रीजन्स में शटडाउन जो है हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। इन द लास्ट मंथ शटडाउन वेर इम्पोज्ड इन अंबाला हरियाणा एज द रिजल्ट ऑफ planned farmer agitations extended in 9 districts of Manipur. Farmer registration and extended in 9 districts of Manipur owing to the prevailing law and order situation of the states. तो लास्ट महीने, ठीक है, जैसे आपका नवंबर महीने में इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ था? अंबाला, हरियाणा में। अंबाला में जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ, क्यों? बिकॉज वहाँ पे फार्मर का एजिटेशन जो है वो चल रहा है। और दूसरा 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंटरनेट शटडाउन लागू हुआ मणिपुर में बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द स्टेट। पूरे जो स्टेट में, मणिपुर के स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन चल रहा है उसके कारण भी हमें इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। और उसके बाद क्या है, 2020 में अगर आप देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शटडाउन्स हुए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, 132 फॉलोइंग रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 प्रीवियस ईयर। 2019 में एकदम मतलब जब आर्टिकल 370 हटा है तो वहां का इंटरनेट शटडाउन हमें करना पड़ा। फिर यहाँ पर क्या है कि उसके बाद कैब का प्रोटेस्ट हुआ, राइट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका प्रोटेस्ट के समय पे भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। उसके बाद क्या है, 2020 के फ्रेश स्टार्ट ही हुआ था जब, उसके बाद जो है बहुत बार हमें इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। फिर फार्मर एजिटेशन, जब फार्मर्स लॉ लेकर आए थे तो उस समय भी जो है एजिटेशन हुआ है। तो उसके कारण पिछले कई सालों से, मतलब ऑलमोस्ट आप 2019 से समझ लीजिए, 2019, 20, 21, 22, 23, ये 5 सालों में बहुत ज़्यादा शटडाउन हुआ। लेकिन वो 2024 में उसका हमें कमी देखने को मिला। उतना ज़्यादा हमने 60 टाइम्स ही बस शटडाउन किया है, ठीक है। और जो भी शटडाउन में हुआ है वो फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए था और फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए भी था। Section 5(2) of Indian Telegraph 1885 reads with temporary suspension of telecom services, public emergency and public safety rules of 2017, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों जो रूल्स है, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड सस्पेंशन ऑफ इन टेलीकॉम सर्विसेज 2017 रूल्स जो है, दोनों को साथ में जो है पढ़ने से क्या समझ में आता है, ये जो है यूनियन या स्टेट होम सेक्रेटरी के ऑर्डर से सस्पेंशन किया जा सकता है कोई भी टेलीग्राफ सर्विस इंक्लूडिंग इंटरनेट, ठीक है, इन द केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी के को देखते हुए हम जो है इंटरनेट शटडाउन करा सकते हैं। सच एन ऑर्डर मस्ट बी रिव्यूड बाय अ कमेटी। होम सेक्रेटरी ऑर्डर दे सकते हैं तो इंटरनेट शटडाउन हो सकता है। सच एन ऑर्डर मस्ट बी रिव्यूड बाय अ कमेटी विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर जो है कि ये कमेटी को जो है रिव्यू करना पड़ेगा। एंड कैन नॉट लास्ट मोर देन 15 days, 15 दिन से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन आप नहीं कर सकते। इन एन अर्जेंट सिचुएशन एन ऑफिसर of joint secretary level or above authorized by union or state home secretary can issue the order। तो joint secretary के लेवल के ऊपर के जो लेवल है वहां पर से कोई एक इशू कर सकते हैं नोटिस कि हमें इंटरनेट शटडाउन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 144 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, जिसके यूज़ करके हम जो है इंटरनेट शटडाउन एंड जो है मार्शल लॉ काइंड ऑफ सिचुएशन जो है इन दी स्टेट लगा सकते हैं। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? सेक्शन एम्पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर रहता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट specially empowered by the state government to issue orders to prevent or stop any nuisance or disturbance
ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अगर पब्लिक जो शांति है उसको अगर कोई खतरे में है तो आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट है वो इशू कर सकते हैं इंटरनेट बंद, इंटरनेट शटडाउन वो जो है इशू करवा सकते हैं अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इशू है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसके कारण इंटरनेट शटडाउन जो है ये हमारा वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल राइट्स में आता है, बिकॉज वो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। तो ये क्या है, सेक्शन 19(1)(a) का आर्टिकल जो है ना ये वायलेट करता है, सेक्शन 19(a), ठीक है, राइट टू फ्रीडम को ये वायलेट करता है, ठीक है। आर्टिकल और आर्टिकल 19(1)(g) को भी ये वायलेट करता है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ओवर मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1) एंड 19(g) ऑफ द, यहाँ पर हमें मिलता है। ऑब्वियसली आपने 19(1)(a) के बारे में तो ऑब्वियसली पढ़ा होगा, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज आप अगर इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस आवर थॉट एंड उसको हम इंटरनेट पे नहीं ला सकते, सोशल मीडिया पे हम नहीं ला सकते, तो आप हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा, आप जो हमारा जो राइट टू वर्क है, ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बताया गया है कि कोई भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को कहीं पर भी हम कर सकते हैं। तो इंटरनेट के कारण क्या है, हमारा जो भी राइट्स है, राइट्स टू टू हैव अ प्रोफेशन ओवर इंटरनेट। अब इंटरनेट का आप सोच रहे हैं कि कौन सा वर्क, मे बी किसी का एक स्मॉल बिजनेस हो सकता है जो कि आप इंटरनेट से सोलली ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, मे बी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अभी आपके पास कैश नहीं है, मेनी पीपल गो कैशलेस दीज डेज। सो अगर हमें कहीं पे कुछ पेमेंट्स करना है या हम कहीं पे कुछ पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इंटरनेट शटडाउन होगा, हाउ आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट those forms of payments? तो उसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ है कि ये अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हैं, इन दी अनुराधा भसीन केस ऑफ इंडियन 2020, जब ये अनुराधा भसीन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, तब बोला गया है कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इंटरनेट को शटडाउन करते हैं तो आप 19(1)(a) को वायलेट कर रहे हैं एंड 19(1)(g) को आप वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इंटरनेट शटडाउन ऑल्सो वायलेट्स द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द राज नारायण केस वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1975, ठीक है। 1975 में ये केस हुआ था जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट बोला गया था। अगर आप हमारे इंटरनेट को शटडाउन करते हैं तो आप हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन का भी वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा है दूसरा एक केस। इंटरनेट शटडाउन जो है ये दे कैन आल्सो वायलेट राइट टू इंटरनेट विच इज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू इंटरनेट तो हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है, आप उनको हमसे छीन रहे हैं, तो ये भी आप वायलेट कर रहे हैं बाय द केरला हाई कोर्ट इन फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 21 को भी ये वायलेट करता है डायरेक्टली। इसके कारण आप देखेंगे बहुत सारे डिसरप्शंस जो है आपको देखने को मिलेगा, लाइक द फर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा, हाउ, ये मेरा इकोनॉमिक लॉस ही है यूपीआई के थ्रू मैं अगर पेमेंट करती हूँ। दूसरा क्या है, डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो एजुकेशन के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, मे बी दे यूज जूम क्लासेस और गूगल मीट, तो ये अपना जो है डिसरप्शन हो जाता है एजुकेशन का। साथ ही क्या है, ट्रस्ट एंड सेंसरशिप कंसर्न्स, कि बहुत बार जो है सेंसर्ड जो चीज़ें हैं वो भी हमें मे बी मतलब कट पेस्ट करके हमें मे बी दिखाया जा सकता है। इम्पेडिमेंट टू डिजास्टर रिस्पॉन्स, अगर आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, अगर कोई बड़ा अगर आंधी तूफान अगर हमारे यहाँ पे आने वाला हो, हमको कैसे पता चलेगा, तो ये भी डिजास्टर रिस्पॉन्ड है। डिसरप्शन ऑफ हेल्थ केयर, बहुत बार जो है हमें पता है कि टेलीमानस, ई संजीवनी जैसे बहुत सारे स्कीम्स है जो हम एक्सेस कर सकते हैं, पर इंटरनेट ना हो तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल रिपरकशन, जैसे ये इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर जो है, इसके कारण हमें क्या बताया जा सकता है। अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पल एक कंपनी का ही देती हूँ, कोई भी कंपनी अगर वो देखेंगे कि अच्छा इंडिया में इतने बार इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, तो क्या वो इधर आके हमारे साथ काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नो। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज अभी उनको इंडिया में ट्रांजैक्शन नहीं करना, विद इन इंडिया ट्रांजैक्शन नहीं करना, उनके तो बाहर से कंपनी होंगी, दूसरे स्टेट की कंपनी होगी। सो वुड दे बी फील गुड टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? आई डोंट थिंक सो। तो वो क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर आप इंटरनेट को शट डाउन करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मेंटेन करके रखना हो तो क्या हम वो कर पाएंगे? और इसके कारण जो इंटरनेशनल रिपरकशंस के कारण ना बहुत ज़्यादा
स्क्यूड ग्रोथ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्क्यूड ग्रोथ होगा। किसी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इनफ्लो होगा एफडीआई का, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा कम होगा। लाइक इन जम्मू कश्मीर, व्हाई डोंट द अदर बिग कंपनीज कम एंड एस्टैब्लिश देयर वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशूज, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन होते रहते हैं यहाँ तो टाइम टू टाइम। व्हाई डोंट पीपल कम टू मणिपुर एंड सेट देयर इंडस्ट्री देयर? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, वन ऑफ द रीजंस, ओके, नॉट एंटायर रीजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज इंटरनेट शटडाउन। तो यहाँ पर वो भी एक इशू रहेगा कि मतलब स्टेट्स लाइक दिल्ली, कर्नाटका एंड इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, पीपल विल गो, सो डेवलपमेंट इन्हीं रीजन्स का होगा। तो एक तो बाहर से लोग आएंगे भी कम, और जहां पर आएंगे वो बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस इशू ओनली। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ जो है बहुत सारी चीजें एट प्ले रहती है, हमें हर चीज के बारे में सोचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सेंटर को 6.21 लाख जो है एप्लीकेशंस मिले हैं अंडर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जैसे हम बोल रहे थे कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप खुद या फिर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग, आप लोग जो है पीएम इंटर्नशिप स्कीम में जो है बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। यू हैव टू गो टू द पीएम इंटर्नशिप स्कीम का वेबसाइट एंड यू कैन सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। The Union Corporate Affairs Ministry said in a release on Sunday that the pilot scheme of PM internship scheme received approximately 6.21 lakh applications against 1.27 lakh opportunities. The selection process of internship is ongoing, the ministry said. 1.27 लाख जो है ये जॉब्स है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेंट्स है? नियर अबाउट 7 लाख। तो लेकिन अभी भी जो है प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप जो है वो चल रहा है। द इंटर्नशिप स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द प्रीवियस यूनियन बजट एंड एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ। 1 करोड़ यूथ को जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है इन द टॉप 500 कंपनीज। ऑब्वियसली स्किलिंग जो है इसमें हमारा मेजर फोकस रहता है कि हम जो है विद द हेल्प ऑफ द बिगर 500 टॉप 500 कंपनीज का हेल्प के जो है हम हमारी जनता को, हमारे यूथ को बेसिकली स्किलिंग करें। यहाँ पर एज एलिजिबिलिटी भी है कि आप 21 से 24 इयर्स के होने चाहिए, तब आपका जो है आपका यहाँ पर हो पाएगा सिलेक्शन जो है इन दी पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है वो आप उसमें एलिजिबल होंगे। द इंटर्न्स विल बी प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स विच 4,500 वुड बी डिस्पर्स्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड 500 जो है वो सीधे कंपनी देगी फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का जो फंड होगा ना वहां से ये 500 रुपए देंगे एंड सरकार जो है वो 4,500 रुपए जो है ये देंगी प्लस 500, तो मतलब आपको इन टोटल 5,000 रुपीज जो है अंडर scheme you will get paid internship है, ठीक है। The Corporate Affairs Ministry also provided with one-time grant of 6,000 for incidental to each intern upon joining the place of internship। तो आपको वन टाइम पेमेंट भी मिलेगा 6,000 रुपए का, जब आप ज्वाइन कर देंगे उस कंपनी को तो आपको वन टाइम पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बड़े कंपनी को अपने आसपास के जो सोशल कॉज के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन जो है वो करना पड़ता है। देयर आर सम क्राइटेरियाज कि आपको इस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा तभी आप जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल होंगे। ये क्या है कि जब कंपनी जो है वो सोशल और एनवायरमेंटल कॉज एंड कंसर्न्स के लिए अपना बिजनेस दे गिव सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है जो अपने कुछ सोशल कॉज के लिए या कुछ इन्वायरमेंटल कॉज के लिए अगर वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है उनको अलग करके रखना होता है। अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 CSR का जो प्रोविजन है ना वो किन किन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है कि उनका एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए का होना होगा और 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा। उनका जो नेटवर्थ है, ठीक है, नेटवर्थ कितना होना होगा? 500 करोड़ होगा या उससे ज्यादा, या नेट प्रॉफिट जो है वो कितना होना होगा? 5 करोड़ से ज्यादा। नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज्यादा होना होगा, नेटवर्थ आपका 500 करोड़ के ज्यादा होना होगा, या फिर आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है 1,000 करोड़ जो है आना होगा। इंडिया की बहुत सी कंपनीज है जो इस कैटेगरी में फिल होती है। बड़े कंपनीज हो, मीडियम साइज कंपनीज हो, बहुत सारी कंपनीज इस कैटेगरी में फिट आती है, तो वो सबको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना होगा, ठीक है। They have to spend at least 2% of their
एवरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रीवियस 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज। ये प्लीज ये CSR का जो टॉपिक है ना, ये पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया है, उससे पहले भी 2017 के में भी एक बार रिपीट हुआ है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स, उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसमें 2% का जो हिस्सा है, ठीक है, अगर उनका एवरेज अगर प्रॉफिट जो है, अगर लेट्स से इट्स 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ और लेट्स से 10 करोड़ है उनका प्रॉफिट, तो 5 करोड़ होना होगा, तो प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है, ठीक है, लेट्स से 10 करोड़ है, ठीक है, 10 CR उनका प्रॉफिट है, 10 करोड़ उनका प्रॉफिट है, तो 2% ऑफ 10 करोड़, 2% जो है, ये 10 करोड़ का 2%, ठीक है, 10 करोड़ का 2% जो है इनको ये CSR के रूप में दे देना होगा, ठीक है। तो ये CSR के रूप में 2% ऑफ 10 करोड़ जो है ये अमाउंट दे देना होगा। अब ये क्या काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स के लिए ये जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लाइक वो कोई जगह पे एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में पैसे दे सकते हैं, या फिर दे कुड यू नो सोशल कंसर्न्स के लिए स्लम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ डोनेशंस जो है वो कर सकते हैं, कोई NGO को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो पैसा बेसिकली उनके जो लास्ट 3 ईयर के जो प्रॉफिट्स है ना, लास्ट 3 ईयर में लेट्स से एक कंपनी है उसको 10 करोड़, एक साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 3 साल में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10 into 3 30 करोड़। नाउ दे हैव टू गिव यहाँ पर क्या है कि उनका एवरेज जो है 3 साल का प्रॉफिट से उनको 2% जो है वो CSR में जमा करना होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको 1 साल का बताया था कि 2% ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर क्या होगा कि आपका एटलीस्ट प्रीवियस 3 ईयर्स में, ठीक है, जैसे ये अभी क्या चल रहा है 2024, 23, 22, 21, ये लास्ट के 3 ईयर्स में 24, 23, 22 लास्ट के जो 3 ईयर्स है उसमें आपका लेट्स से प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए हुआ है। नाउ यू हैव टू गिव 2% ऑफ 30 करोड़, ठीक है, 2% ऑफ 30 करोड़ जो है ये आपको देना होगा। तो इट वुड बी रफली अराउंड 15 लाख रुपीज जो है, 15 लाख रुपीज आपको CSR के रूप में यूज करना होगा, ठीक है। CSR के रूप में जो है आपको ये 15 लाख रुपीज जो है ये यूज करना होगा। दिस इज दी 2% ऑफ 30 करोड़। तो अब ये पैसे, या आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सोशल कॉज के लिए, लेट्स से आप LGBTQ के जो कम्युनिटी है उनके लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए अगर आप कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें, इन्वायरमेंटल के लिए आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे पैसे लगाए, ऐसा करके आपको कुछ करना होगा। एंड दिस शुड नॉट बी डायरेक्टली आपके कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। ये जो एक्टिविटीज है आप अपने कंपनी के लोगों के लिए नहीं करेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप कंपनी के बच्चों को आप पढ़ा रहे, आपकी कंपनी में वर्क करें, उनके बच्चों को आप स्कूल का फीस भरे, ये नहीं होगा। दिस वोंट काउंट अंडर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही चीजें आएंगी जो कि इन्वायरमेंट के लिए अगर आप कुछ करें, या आप सोशल कॉज के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.